Hello everyone, a very warm welcome to my channel Success Drivers by Deepti. In my today's video, we are going to begin with the third subject of CIG. So NES 103. Here we are going to start with NES 103. So here in this video, I am going to cover Unit 1, which is Factors Affecting Learning. So let's go ahead and understand the meaning of learning first. Understand the meaning of the word learning. Learning means changes in the behavior of an individual, or we can say it is the modification in the behavior of an individual. Modification का क्या मतलब होता है? It means the changes which are coming due to the experiences. Let's take the example. One child who touches the lighted candle burns his hand. एक बच्चा जो लाइटेड कैंडल को टच करेगा, एक मोमबत्ती को टच करेगा, उसका हाथ जल जाएगा. क्या नेक्स्ट टाइम वो फिर से ऐसी चीज करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा. बिकॉज he has learned with his first experience that the lighted candle can hurt him. अब ये एक्सपीरियंस उसके हेल्प करता है आगे आने वाली लाइफ में. So there is a modification, there is a change in the behavior of an individual, and that is called as learning. Now let's come ahead and learn about the factors affecting learning. Factors affecting learning. There are 5 factors which are affecting learning. The first factor is psychological factor. The second one is physiological factor. The third one here is environmental factor. The fourth one here is educational factor, and the last one here is socio-emotional factor. So there are 5 factors which are affecting the learning. Let's learn about these factors one by one. Factor here is the physiological factor, which is derived from the word physique. Physique का क्या मतलब होता है? Body. So these are basically the bodily factors. So here the first point says ability to see, यानी कि एक बच्चे की ऐसी ability जिससे कि वो देख सकता है. अगर एक बुक में लिखे हुए printed words को वो नहीं पढ़ पाता, तो इससे क्या होगा? उसकी development effect होगी, यानी कि उसके academics भी effect होगी, and personally speaking उसकी physiological development भी effect होगी, learning effect होगी. सेकेंड पॉइंट सेज द ऑडिटरी डिफेक्ट्स. कोई बच्चा जो सही से नहीं सुन पाता, जिसकी ऑरल पावर जो है वो नहीं अच्छी है, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगेन उसकी लर्निंग इफेक्ट होगी. द थर्ड पॉइंट हियर सेज फार साइटेडनेस. फार साइटेडनेस का क्या मतलब होता है? जिसे बाहर का यानी कि दूर का नहीं दिखाई दे सकता. लाइकली आई एम वेयरिंग द स्पेक्स एंड हियर आई एम सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ फार साइटेडनेस, यानी कि मुझे दूर की चीजें दिखाई नहीं दे सकती. इफ आई डू नॉट मेक यूज ऑफ स्पेक्टिकल्स, there would be a lot of problem created for me, isn't it? तो यानी कि मेरी लर्निंग जो है वो हैम्पर हो सकती है क्योंकि मुझे फार साइटेडनेस की प्रॉब्लम है. द नेक्स्ट पॉइंट सेज एबिलिटी टू रिमेंबर समथिंग, यानी कि हमारा मेमोरी स्पैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और द फैक्टर्स. अगर एक बच्चे की सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो कम हो, या फिर कुछ रिकॉल करने की जो शक्ति होती है वो कम हो, ऐसे केस में उसकी लर्निंग जो होती है वो इफेक्ट हो जाती है. So these are basically the physiological factors which are affecting the learning of a child. Now let's go ahead and learn about the psychological factors. Psychological factors like the personality, intelligence, attitude, aptitude, and the self-concept of an individual. These are the most important psychological factors which affect the learning of a child. The next point, the second point says attention and concentration. यानी कि एक बच्चे का attention span जो है वो बहुत important होता है उसकी learning के लिए. कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरा बच्चा तो 2 मिनट के अंदर जो है उठ खड़ा होता है और कुछ पढ़ता नहीं है. That is what is called as an attention span. यानी कि किसी भी बच्चे का जो attention है वो एक ही जगह पर focus रहेगा या नहीं रहेगा. ये चीज इफेक्ट करती है उसकी लर्निंग को. द लास्ट पॉइंट हियर सेज सेल्फ कंसेप्ट, दैट एन इंडिविजुअल सेल्फ कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज लर्निंग. एक ऐसा बच्चा जिसका सेल्फ कंसेप्ट बहुत लो है, ऐसे केस में वो लर्निंग नहीं कर पाएगा. ही विल ऑलवेज ट्राई टू अंडर एस्टिमेट हिमसेल्फ, ही विल ऑलवेज ट्राई टू पुट हिमसेल्फ इन inferiority complex. So this is the part of psychological factors wherein the psychological factors affect the learning of an individual. Now coming to the next part, which is socio-emotional factor. Socio-emotional factors. The first factor here is
फैमिली ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चा अगर एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, वहाँ पे उसके पेरेंट्स उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी लर्निंग परफेक्ट होती है। देर आर नो ऑब्स्टिकल्स इन लर्निंग। बट इफ वी टॉक अबाउट अ जॉइंट फैमिली वेयर द चाइल्ड इज गेटिंग अ लॉट ऑफ पैम्परिंग एंड हिज और हर टैंट्रम्स आर टॉलरेटेड, तो ऐसे केस में क्या होता है, उसकी लर्निंग जो होती है हैम्पर हो जाती है। द सेकेंड पॉइंट सेज वर्किंग mothers. Nowadays, almost all the mothers are working, isn't it? There are a lot of working mothers, the parents who are actually focusing on their professions or on their fields, but they are not focusing on their children. ऐसे केस में क्या होता है, बच्चे को गाइडेंस नहीं मिलती है, he does not get the right path towards सक्सेस। तो ऐसे केस में बच्चे की लर्निंग जो होती है वो हैम्पर हो जाती है। थर्ड पॉइंट, हिज रिलेशनशिप्स विद हिज सिबलिंग्स, यानी कि बच्चों का कैसा बिहेवियर है, कैसा उनका रिलेशनशिप है अपने भाई बहनों के साथ में। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी बच्चे के घर पे एक छोटा सा बेबी पैदा हो जाता है और उसके बाद उसकी लर्निंग जो है वो हैम्पर हो जाती है। क्यों हो जाती है उसकी लर्निंग हैम्पर? क्योंकि हर बच्चे को ऐसी डिमांड होती है कि मेरे ऊपर पर्सनल अटेंशन होनी चाहिए पेरेंट्स की, और जब वो नहीं होती है तो बच्चे को राइट ट्रैक नहीं मिलता है, ड्यू टू विच द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड गेट्स इफेक्टेड। द नेक्स्ट पॉइंट हियर सेज चाइल्ड्स पोजीशन इन द फैमिली, यानी कि अगर बच्चे की वैल्यूज़ को अगर हम ओबे करते हैं, उसकी कुछ बातों को अगर हम मानते हैं, वहाँ पे बच्चा जो है वो अच्छे से लर्न कर पाता है। इसे आप री-इन्फोर्समेंट भी कह सकते हैं। इसे ब्राइबरी नहीं कहेंगे, इसे री-इन्फोर्समेंट कहेंगे। ब्राइबरी का मतलब है बच्चे की हर आलतू फालतू जितनी डिमांड है उस सबको पूरा करना, उसको कुछ ना कुछ हमेशा ला के देते रहना, उसके टैंट्रम्स को टॉलरेट करना। बट री इन्फोर्समेंट डज नॉट मीन्स दिस। यहाँ पे पेरेंट्स के अपने खुद के रूल्स होते हैं, अगर आप ये करके दिखाएंगे तब आपको ये चीज़ मिलेगी, एंड दिस इज समथिंग विच हैपन्स वंस इन अ वाइल। तो इस तरीके से कुछ सोशल इमोशनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे की लर्निंग जो होती है वो इफेक्ट होती है। सो वी हैव स्टडीड अबाउट द सोशल इमोशनल फैक्टर्स हियर। नाउ लेट्स गो अहेड विद द एजुकेशनल फैक्टर्स। Factors, the way the teacher teaches is very important. एक टीचर का इंस्ट्रक्शंस देने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। अगर एक टीचर की डायरेक्शंस जो है बच्चे को समझ में आती है तो उसकी लर्निंग जो होगी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से होगी। बट इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू हिम और हर बाय द टीचर, इन दैट केस द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड विल डिटियोरेट। द सेकेंड पॉइंट सेज ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स, जैसे कि इंस्टीट्यूट्स के अंदर होता है, एक ही क्लास में भेड़ बकरियों की तरह सभी बच्चों को डाल दिया जाता है, एक ही क्लास के अंदर 100 बच्चों को इकट्ठे हैंडल किया जाता है। ये तो बस वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर? चाइल्ड की लर्निंग। अगर बच्चे को 100 बच्चों के बीच में बैठ कर भी समझ में आता है, दैट इज वेल एंड गुड। बट इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, then a teacher should conduct the special coaching classes. There should be individual attentions for the children. The next point here says unavailability of the basic resources. अगर आपके पास एक ब्लैक बोर्ड नहीं है, आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास पेन नहीं है, आपके पास कोई TLMs नहीं है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं है, ऐसे केस में क्या होगा? ड्यू टू द लैक ऑफ और द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, क्या होगा? बच्चे की लर्निंग जो है वो हैम्पर हो जाएगी, बच्चा सही से नहीं पढ़ पाएगा। सो दिस इज हाउ द एजुकेशनल फैक्टर्स which are affecting the learning. Also there is one more factor which is the multilingualism or the bilingualism. तो यहाँ पे क्या होता है, कई बच्चे जो होते हैं वो कई अलग फैमिलीज को बिलोंग करते हैं जहाँ पे उनकी लैंग्वेज जो होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। सपोजिटली आई एम टीचिंग इन अ स्कूल वेयर देयर इज द लैंग्वेज ऑफ मराठी। अगर बच्चों को मराठी ही समझ में आती है तो उनको सभी सब्जेक्ट्स जो है हमें उसी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट्स करने पड़ेंगे। बट इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मराठी, उस केस में क्या होगा? उसकी लैंग्वेज जो है वो उसकी जो लर्निंग है वो हैम्पर हो जाएगी। सो अ टीचर must focus on multilingualism and bilingualism. So this is very important. So these are basically the educational factors which are affecting the learning of a child. Now we would be learning about the environmental factors. Example, if we learn about the environmental factors, that is the environment. एक बच्चे को एक ऐसे क्लासरूम में रखा गया जहाँ पे लाइटनिंग नहीं है प्रॉपर, तो क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। सेकेंडली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, द सराउंडिंग्स आर वेरी नॉइजी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज, और इफ़ देयर इज़ अ कमर्शियल एरिया, तो ऐसे एरिया में बच्चा नहीं पढ़ पाएगा।
The third point says if it's an overcrowded classroom, if it's an overcrowded classroom, वहाँ पे भी बच्चा सही से नहीं पढ़ पाएगा. There will be a lot of suffocation in that case. तो अगर बच्चे को proper environment नहीं provide किया जाता, ऐसे केस में बच्चा सही से नहीं पढ़ सकता, यानी कि उसकी learning जो होगी वो खराब हो जाएगी, deteriorate हो जाएगी या फिर hamper हो जाएगी. So a teacher must try to provide a conducive environment for the child to study, and these are all the 5 factors which are affecting the learning of a child. Now we would be learning about the laws of learning, which either can interfere or can enhance the learning process. So now let's learn about the laws of learning. Law here is law of use, यानी कि जितना ज़्यादा बच्चा किसी भी इंफॉर्मेशन को सीख कर यूज़ करता है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करता है उस चीज़ की, उतनी ही जल्दी उसे वो इन्फॉर्मेशन याद हो जाती है और उतनी ही जल्दी वो इस इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प कर सकता है फ्यूचर यूज़ के लिए भी. यानी कि इफ़ द चाइल्ड यूजेस सर्टेन इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इससे क्या होगा, उस बच्चे को वो इन्फॉर्मेशन जो है बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी, बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू यूज़ इट इन हिज डे टू डे लाइफ. दिस इज़ लॉ ऑफ यूज़. लॉ ऑफ डिसयूज, यानी कि अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को मगअप कर लेते हैं, रोट मेमोराइजेशन कर लेते हैं, बट अगर उसे आप थोड़े ही टाइम के लिए करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, बिकॉज नॉट यू आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिसयूज, यानी कि आप उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करते हैं. दिस इज लॉ ऑफ डिसयूज. प्रिमेसी, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन बच्चे ने सबसे पहले याद की थी वो उस इन्फॉर्मेशन को बहुत लंबे टाइम तक रिटेन रखता है, रिकॉल कर पाता है. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्रिमेसी. फॉर एग्जाम्पल ABCD, यानी कि जो चीज़ हमने सबसे पहले सीखी थी वो आज तक हमें याद है. दिस इज लॉ ऑफ प्रिमेसी. रीसेंसी, यानी कि रिसेंटली लर्नड इंफॉर्मेशन इज रिमेंबर्ड बाय द चाइल्ड, यानी कि अभी अभी जो बच्चे ने याद किया है उसे वो बहुत ही लंबे टाइम तक याद रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रीसेंसी. रेडीनेस, यानी कि रेडीनेस का क्या मतलब होता है, इट मीन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सीखता है, ईगरनेस के साथ सीखता है, तो वो इन्फॉर्मेशन उसे ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है. सो दिस इज द लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि एक्टिव लर्निंग बाय द चाइल्ड. इफ द चाइल्ड इज एक्टिवली लर्निंग और पार्टिसिपेटिंग इन सम टास्क, ही टेंड्स टू लर्न इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड द लास्ट लॉ हियर सेज लॉ ऑफ इफेक्ट. सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लॉ ऑफ इफेक्ट. इफेक्ट यानी कि अगर आप उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को आप अपने दिमाग में ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हैं. सो हियर वी हैव कवर्ड ऑल द लॉज ऑफ लर्निंग. आई होप द एंटायर यूनिट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू. सो दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज कवरिंग what is the meaning of learning and the second one, factors affecting learning. So try to learn all the factors which are affecting learning since it is very important. So here ends my video. I hope it's well and clear to all of you. Thank you so much for watching, and I would be coming up with more videos of NES 103. Thank you so much. Bye for now.